हेलो एवरीवन, दिस इज माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है सबात। सबात तहरीर किया है काशिफ अनवर ने और इसको डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने। इट स्टार्स सारा खान, अमीर गिलानी, मावरा हुसैन, उस्मान मुख्तार अमंग अदर्स। लव ट्रायंगल्स तो नहीं कह सकते बट लव quadrangles कह सकते हैं, आई डोंट नो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इस बात के बारे में। आई वोंट लाई and I won't get carried away in the criticism which we often do when it comes to our dramas. There are so many great things about this TV show. Finally we are seeing a movement of the Pakistani television heroine. एक VP message अब वो बदल रही है। VP message वो अभी भी है because obviously how else are you going to sell a story? But now actually she's turned into and sort of an enterprising sort of a creature. अनाया जो है which is played by मावरा हुसैन, वो इस एपिसोड में, रिसेंट एपिसोड में जब उनको पता चलता है कि अब उनके पास कोई पैसा नहीं है तो वो कैसे अपने नीड्स पूरी करेंगी। थोड़े से प्लॉट होल्स हैं, लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वापस काम पे क्यों नहीं चली गई एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक व्हाट माय गेस इज दैट इट्स क्लोजर, वे टू क्लोजर टू हर delivery time, and she wants to be with her mother and everything, so she has very limited options. Although I also feel like it's a very nice house. They live in a very nice sort of a place which is seemingly very kept well. So I don't know, something doesn't really fit in that whole, in the way that the house has been set up. But let's assume that still there are these very modest circumstances in which she has to live. So within that house she sort of gets up from that and then turns into this entrepreneur and then sort of makes way for her needs, and then she also manages to pay for her hospital and gives birth to a boy and then names the boy after her father. All of these things in Sabat are very, very cool, very, very empowering. Love the strong empowered messages, and I'm so glad that our shows are gradually moving towards a sort of a dynamic or a power dynamic between hero and heroine, which used to exist in our dramas. पहले होता था, पहले लड़कियां कुछ अपना काम कर लेती थी, उनकी ज़िंदगी में और ड्रामे होते थे। लेकिन अब तो वही एक ड्रामा हो गया ना कि शादी टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है, उसके अलावा बीच में ज़िंदगी में वो क्या करती है वो कुछ नहीं है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड हमारी ड्रामों में वापस आ रहा है। आई विल से वापस आ रहा है, आई विल नॉट से कि आ रहा है, क्योंकि ये ड्रामे हमारे पहले भी होते थे। लेकिन अब जो बीच में एक टाइम आया था जिसमें हमारे ड्रामे बिल्कुल पता नहीं किस ट्रैक पर चलना शुरू हो गए थे, तो उस ट्रैक से वापस थैंकफुली हम वापस जा रहे हैं एक एम्पावर्ड हेरोइन की तरफ। एक ऐसी लड़की जो कि थिंकिंग बीइंग है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है और उसको वो इतनी सबर की पुतली बनने की जरूरत नहीं है। वो एम्पावर्ड है, शी इज डीलिंग विद लाइफ मैन, एंड दैट इज लाइफ, एंड शी इज वेरी I love that about Anaya's character, the way that it's written, that it's also a girl who doesn't want the bheek, doesn't want the pity. So many times we are looking at girls, even if they're not sobbing, they're just pitiful. So good to see that a girl is just not that kind of a pitiful being, and she's dealing with life. She knows that she's been dealt with a rough hand, but she's dealing with it. What's not so great about Sabat? What's not so great about Sabat is the Usman Mukhtar, Sara Khan, Miral Hassan, plot line. I mean, I don't know, I've said so much about it, but this time we finally see that, the divorce is almost finalized, and Dr. Haris, which is played by Usman Mukhtar, he's very heartbroken, and you got to feel for him. Usman has done beautifully in this show, and I feel like, again, he's such a good actor. I wish that they would give him something more to do rather than, look moonily at Miral, or just say something like, Miral, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो समझो। मतलब भाई उसकी कोई और थॉट प्रोसेस नहीं है। मिराल मुझसे नाराज़ है, मिराल मुझसे नाराज़ नहीं है, मिराल को मैं कैसे करूँ? यू न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो उसके बाद तुम्हारी दिमाग में एज अ साइकाइट्रिस्ट भी तो कोई और रीजनिंग आनी चाहिए ना कि तुम्हें क्यों ऐसा लगा इस लड़की के साथ, उसका बिहेवियर तुम कैसे एनालाइज करते हो, वो क्यों ऐसे कर रही है, तुम क्यों बेंड ओवर। और आई एम श्योर कि वो बेंड ओवर बैकवर्ड्स करने का भी रीज़न दे सकते थे। बहुत सारी रिलेशनशिप्स टॉक्सिक इसीलिए होती हैं। वो टॉक्सिक इसीलिए होती है क्योंकि एक बंदा जो है वो गिवर बन जाता है और एक बंदा टेकर बन जाता है, एंड दैट रिलेशनशिप इज बिलीवेबल, बट you need to justify that somehow, right? And that I felt was not justified in Dr. Harris's character. That is why it's so frustrating to watch. And at the same time, I do want to commend Sara Khan as well, and all the other actors, Simi Rahil and Mawra Hussain and Ameer Gilani. Fantastic job by everybody. What I do want to also commend is the writing, that despite this plot hole and this massive plot hole, it's still a very, very good show, and it shows the way that relationships fracture. It shows that when one person becomes an abuser or withholder of emotion or doesn't trust other people, and there's so much wrong with how both of these this brother and sister duo, how crazy both of them are and why they are like that. So a lot of that was shown, but then वो फिर कहीं चली गई story
कि why their parents had a very weird dynamic. So usually what happens is with children like these that parents की ही dynamic outplay होती है बच्चों के अंदर. तो वो कुछ हद तक तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, जो अज़रा मंसूर जो उनकी नानी होती हैं, उनको हेलुसिनेट करती हैं, वो बड़ा अच्छा दिखाया. उसको थोड़ा और पुश कर सकते थे और कहानी में और जान आ सकती थी. वो चीज़ एटलीस्ट वो थोड़ी देर बाद हेमलेट में जैसे गोस्ट आता था ना बार बार, तो वो कहीं ना कहीं गोस्ट अगर आ जाता और एक्सप्लेनेशन दे देता तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाती. इसके अलावा अच्छा शो है यार, देखें, बिल्कुल देखें. और लाइक आई सेड, एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, डायरेक्शन भी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है. बस ये जो एक दो जगह से ये जो मार खा जाते हैं ना हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स, और मतलब एक छोटी सी बात को अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है. जैसे रिसेंटली मैंने देखा था कि प्यार के सदके से बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ थे, लेकिन प्यार के सदके में जब उन्होंने सारी चीज़ वाइंड अप की, जब उसको रैप अप किया, तो वो ठीक समझ आ गई बात कि अच्छा हाँ सही है, ओके दिस इज़ व्हाट इट वाज. सो मे बी बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ ये चीज़ें भी रैप अप हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी हम लोगों को भी. सो आई वॉन्ट बी वेरी क्विक टू जज, बट आई विल से दैट दीज पास्ट एपिसोड्स हैव बिन अ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द बेटर शोज दीज डेज. It was one of my top shows, but now it's come slightly down because my top shows have become मुश्क, सराब एंड घिसी पिटी मोहब्बत, जिनके रिव्यूज़ मैं पहले कर चुकी हूँ. तो आप देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं. बाकी यूट्यूब चैनल पे मेरे सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं. इसके अलावा आप कौन से शोज़ देख रहे हैं? अपकमिंग शोज़ जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं. धुलन है, भड़ास है, इस तरह एक दो और भी शोज़ हैं जो बड़े एक्शन पैक टाइप के हैं. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दैट? मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको सराब की रिसेंट एपिसोड कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. आप मेरे कमेंट्स एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या कहते हैं? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.